Namaste everyone. So students, from the last three lectures, we are studying about trigonometric functions of multiple and some multiple angles, right? In our first lecture, our focus was on trigonometric functions of angle 2A in terms of A. And in second lecture, again our focus was on trigonometric functions of angle 2A in terms of A, right? So in our first two lectures we had done a number of questions which are based on trigonometric functions of angle 2A in terms of A. Then in third lecture we had discussed about trigonometric functions of angle A in terms of A by 2, and today we will talk about trigonometric functions of angle 3A in terms of A. आज हम बात करेंगे trigonometric functions of angle 3A in terms of A की, right? So students, कुछ formulas हैं which are based on trigonometric functions of angle 3A in terms of A. As in case of trigonometric functions of angle 2A in terms of A, there are some formulas available. Similarly in this case, so same in case trigonometric functions of angle 3A in terms of A, there are three formulas are available. Let us see कि वो formulae क्या हैं. So first formula is yes. So the number one is sin 3A is equal to sin 3A is equal to 3 sin A minus 4 sin cube A. So students, you can see here on the left hand side this sin is trigonometric function, this 3A, so this is trigonometric function of angle 3A, and in right you can see angle A, so that's why trigonometric function of angle 3A in terms of A, right? सो आपको जस्ट इन फॉर्मूलोज़ को लर्न करना है, इनके डेरिवेशंस आपके सिलेबस में नहीं है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि हाउ दिस फॉर्मूला इज डिराइव्ड. ओके, सो साइन 3A इज इक्वल टू 3 sin A minus 4 sin cube A. सो कैसे डिराइव हो रहा है? साइन 3A वी कैन राइट इट एज साइन 2A प्लस A, राइट? सो वी कैन ब्रेक 3A एज 2A प्लस A. नाउ लेट अस assume 2A as a and A as a B. Now we will apply formula of sin A plus B, right? So we know sin of A plus B, sin A plus B is equal to sin A cos B plus cos A sin B. So apply this formula. So after applying, we will get sin 2A plus A. This is equal to sin 2A sin 2A into cos A plus cos 2A into sin A. बट स्टूडेंट्स, हमारा जो रिजल्ट है, जो हमारी राइट हैंड साइड है, डेट इज़ टोटली इन टर्म्स ऑफ साइन ए ओनली. तो इट मीन्स देर आर टर्म्स लाइक यू कैन सी कोस टर्म्स है हमारे पास यहाँ पे, जैसे कॉस ए है, इसको हमें साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि रिजल्ट हमारा पूरा साइन में कम्प्लीटली आना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट साइन 2A एज 2 sin A cos A इंटू कॉस ए प्लस, और कॉस 2A का भी हम वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे जो कि केवल साइन की टर्म्स में है, एंड दैट फॉर्मूला इज 1 minus 2 sin square A, because we know formula of cos 2A in terms of sin only is 1 minus 2 sin square A. Now 2 sin A and cos A into cos A, it will be cos square A, cos square A, and we know cos square A is equal to 1 minus sin square A, so we can write here 1 minus sin square A plus sin A minus 2 sin cube A. So it will be 2 sin A minus 2 sin cube A plus sin A minus 2 sin cube A, and it will be 3 sin A minus 4 sin cube A. So it is our required right hand side, that is 3 sin A minus 4 sin cube A. So students, it is the procedure how this formula is derived, how sin 3A is equal to 3 sin A minus 4 sin cube A, right? So it is only for understanding. आपको सिर्फ इनके जो formulas हैं, जो results हैं, वो आपने याद रखने हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन दिस जो formulas डायरेक्टली जो formula है ये अप्लाई होंगे क्वेश्चंस में, right? Now let us come to next second formula, that is cos 3A. Cos 3A, this is equal to 4 cos cube A minus 3 cos A. So the same procedure will be followed. सेम प्रोसीजर से ये भी फॉर्मूला डिराइव होगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले cos 3A. So cos 3A is equal to same cos 2A plus A. So cos 3A को हम लिख सकते हैं
we can write cos 3a is equal to cos 2a plus a. Again we will take it as a and a as b, and then we'll apply formula of cos a plus b. So cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b. Now apply this formula here. So at the place of a we will put 2a, and at the place of b we will put a. So cos 3a is equal to, so it will be cos 2a into cos a minus sin 2a into sin a. And students, in this case our जो right hand side है that is completely in terms of cosine a. तो हमें cos a के terms में पूरी अपनी जो right hand side है उसे convert करना है. तो cos 2a यहाँ पे है. लास्ट टाइम हमने cos 2a का साइन के टर्म्स में फॉर्मूला पुट किया था बिकॉज हमें साइन के टर्म्स में रिजल्ट चाहिए था. बट इन दिस केस अवर रिक्वायरमेंट इज इन टर्म्स ऑफ कोसाइन. दैट्स व्हाई वी विल पुट फॉर्मूला ऑफ cos 2a इन टर्म्स ऑफ कोसाइन ओनली. सो cos 2a 2 cos square a minus 1, it is formula of cos 2a in terms of cosine into cos a, and from here sin 2a 2 sin a cos a into sin a, and it will be 2 cos cube a minus cos a, 2 cos cube a minus cos a, and then sin a into sin a, it will be 2 sin square a. That is sin a into sin a, it will be 2 sin square a into cos a, and we will write sin square a. तो यहाँ हमें टोटली इसको कोसाइन में कन्वर्ट करना है. तो जहाँ पे भी हमारे पास साइन में टर्म होगी हम उसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे into cos a. So it will be 2 cos cube a minus cos a minus 2 cos a plus 2 cos cube a. So our required result will be 4 cos cube a minus 3 cos a. तो ये हमारी required right hand side आ गई. That is 4 cos cube a minus 3 cos a. तो ये हमारा second formula है. That is cos 3a is equal to 4 cos cube a minus 3 cos a, and the first one is sin 3a is equal to 3 sin a minus 4 sin cube a. Now come to third. The third is tangent 3a. So tangent 3a is equal to 3 tangent a minus tan cube a upon 1 minus 3 tan square a. Okay. So let us see कि ये कैसे derive होगा. That is tangent 3a is equal to 3 tangent a minus tangent cube a upon 1 minus 3 tan square a. Let us see. Same. We will start from tangent 3a is equal to, we will write it as tangent 2a plus a. We will break 3a as 2a plus a. So tangent 3a, we can write it as tangent 2a plus a. And again we will apply here formula of, as in case of sine and cos, we have applied sine of a plus b, cos a plus b. Same in this case we will apply formula of tangent a plus b. So tangent a plus b is equal to tangent a plus tangent b upon 1 minus tangent a into tangent b. Okay. So just apply the formula and we will get tangent 3a is equal to tangent 2a plus tangent a upon 1 minus tangent 2a into tangent a. Right students? बट स्टूडेंट हमें जो ऑल ओवर जो रिजल्ट चाहिए वो हमारी रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट ए. और यहाँ पे आपके पास टेंजेंट 2a है. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस टेंजेंट 2a को टेन की टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा टेंजेंट ए के टर्म्स में. सो देयर इज अ फॉर्मूला अवेलेबल, दैट इज फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट 2a इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट ए, एंड द फॉर्मूला इज, ऑल ऑफ यू नो, आई हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर लेक्चर, दैट इज टेंजेंट 2a इज इक्वल टू 2 टेंजेंट a अपॉन 1 माइनस tan square a. So just put at the place of tangent 2a is equal to tangent 2a upon 1 minus tan square a, and after simplification we will get our required result, that is 3 tangent a minus tangent cube a upon 1 minus 3 tan square a. Let us see. So it will be 2 tangent a upon 1 minus tan square a plus tangent a upon 1 minus 2 tangent a upon 1 minus tan square a into tangent a. Okay, now just take LCM in numerator and denominator, and after solving we will get 2 tangent a plus tangent a minus tangent cube a upon, it will be 1 minus tan square a minus 2 tan square a, and after solving we will get 3 tangent a minus tangent cube a
अपॉन 1 माइनस 3 tan square a. इट इज अवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड, दैट इज 3 tangent a माइनस tangent क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan square a. सो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल, इनको डिराइव करना भी बहुत सिंपल है, ठीक है. तो ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था, बट आपको तीनों फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से लर्न करने हैं. आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो उन तीनों फॉर्मूलोज के ऊपर बेस्ड है. राइट नाउ लेट अस मूव फर्दर. नाउ स्टूडेंट्स, अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, अभी हमने बात की है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल 3a इन टर्म्स ऑफ a की बात की है. अगर हम यहाँ पे 3a के प्लेस पर a की बात करें, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल a. तो दिस इज 3a, तो उसका 1/3 यहाँ पे a हो गया. तो सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अगर एंगल a की बात होगी तो वो इन टर्म्स ऑफ a/3 हो जाएगा. राइट तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल 3 इन टर्म्स ऑफ a एंड then the trigonometric functions of angle A will be in terms of a/3. right. तो इन्हीं फॉर्मूलों से हमारे पास तीन फॉर्मूले और बन सकते हैं. यहाँ पे हमने 3a को इन टर्म्स ऑफ a लिखा है. अगर यहीं से हमने a को इन टर्म्स ऑफ a/3 लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? तो इट्स वेरी सिंपल. इन्हीं तीन से बाकी तीन आपको याद हो जाएंगे. जैसे कि sin 3a है, तो अगर यहाँ पे आप a लिखते हैं, यहाँ 3a है तो उसका 1/3 a है. अगर यहाँ a लिखेंगे तो यहाँ पे a/3 हो जाएगा. तो इट्स वेरी सिंपल, 3 sin a/3 minus 4 sin cube a/3. Next fifth, same cos a. तो here will be 4 cos cube. तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल, कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. अगर आपको ये फर्स्ट 3 अगर आपको लर्न हो रहे हैं तो बाकी 3 आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे. नंबर 6, सो टेंजेंट a इज इक्वल टू 3 टेंजेंट a/3 minus tangent cube a/3 upon 1 minus 3 tan square a/3. right. तो these are our 6 formulas and आज इन्हीं के ऊपर बेस हम अपने क्वेश्चंस आज करने वाले हैं. so the first one is sin 3a is equal to 3 sin a minus 4 sin cube a, and the next one is cos 3a is equal to 4 cos cube a minus 3 cos a. And the third one is tangent 3a is equal to 3 tangent a minus tangent cube a upon 1 minus 3 tan square a. And the next three are the trigonometric functions of angle a in terms of a/3. So sin a is equal to similarly 3 sin a/3 minus 4 sin cube a/3. And the number 5th is cos a is equal to 4 cos cube a/3 minus 3 cos a/3. And number 6 is tangent a is equal to 3 tangent a/3 minus tangent cube a/3 upon 1 minus 3 tan square a/3. राइट स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूलोज को आप अच्छे से लर्न कीजिए. फॉर्मूलेज अगर आपको अच्छे से लर्न होंगे तो आप क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं. सो लेट अस कम टू अवर क्वेश्चंस. सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या है हमारा? इफ 2 sin थीटा इज इक्वल टू x plus 1 upon x, then prove that sin 3 theta plus 1 by 2 x cube plus 1 by x cube is equal to 0. So in this question it is given 2 sin theta is equal to x plus 1 by x, or we can say value of sin theta is given. हमें sin theta की वैल्यू गिवन है, तो sin थीटा की वैल्यू यहाँ से बन जाएगी 1 by 2 x plus 1 by x. So value of sin theta is given and we have to prove sin 3 theta plus 1 by 2 x cube plus 1 by x cube is equal to 0. So students, in this question it is very clear कि हमें जो यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है वो सबसे पहले अप्लाई करना है sin 3 थीटा, क्योंकि sin 3 थीटा हमारे पास टर्म है, that is sin 3a. तो फ्रॉम हेयर sin 3 थीटा विल बी 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, और sin थीटा की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, हम पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे और सॉल्व करके हमारा 0 रिजल्ट आ जाएगा. तो इट्स वेरी सिंपल, देखते हैं कैसे होगा. तो सबसे पहले sin 3 थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा. यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं और राइट हैंड साइड 0 के इक्वल हमने इसको प्रूव करना है. नाउ पुट एट द प्लेस ऑफ वैल्यू ऑफ sin थीटा के प्लेस पर sin थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए. वैल्यू कहाँ से आई है हमारे पास? हमें गिवन था 2 sin थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स. तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ sin थीटा है, सो 3/2 x प्लस 1 बाई एक्स. sin क्यूब थीटा कर दीजिए, सब क्यूब कर दीजिए, तो 1/2 होल क्यूब 8 हो जाएगा. एंड अंदर x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ऑल ऑफ यू नो a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब
प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो सिमिलरली यहाँ से x प्लस 1 बाई एक्स होल क्यूब आपके पास आएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। और सिंप्लीफिकेशन करके सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स से एक्स कैंसिल प्लस 3x प्लस 3 बाई एक्स। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ प्लस 3x प्लस 3 बाई एक्स। तो ये रिजल्ट कैसे आया, आपको क्लियर हो गया कि रिजल्ट कैसे आया, प्लस 1 बाई 2 एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट 0 कैसे आएगा। सो इट विल बी 3 बाई 2 एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई 2 यहाँ पे हो गया। तो अभी मैं सिर्फ 1 बाई 2 को सिर्फ इतनी टर्म से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो यह आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। और उसके बाद 1 बाई 2 को नेक्स्ट मैं इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो जब मैं 1 बाई 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो उसमें भी 3 कॉमन है, तो ये बन जाएगा माइनस 3 बाई 2 एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई 2 एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, राइट। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे दो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ठीक है, दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई हैं आपके पास, ठीक है। एंड ये दोनों टर्म्स भी आपके पास कैंसिल हो गई हैं, तो ओवरऑल सभी टर्म्स आपके पास कैंसिल हो गई हैं एंड आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट इज 0, दैट इज राइट हैंड साइड। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल। क्या किया हमने, हमें साइन थीटा की वैल्यू गिवन थी और हमें ये प्रूव करना था, तो जस्ट हमने पहले साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया और उस फॉर्मूले में साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ हमने पुट की, सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, डेट इज 0। ओके, नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So let us see what is our next question. Yes, so the next question is, yes, we have to prove tangent A, prove tangent A into tangent 60 minus A into tangent 60 plus A, and we have to prove this is equal to tangent 3A. हमें इस पूरी लेफ्ट हैंड साइड को टेंजेंट 3A के इक्वल प्रूव करना है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि इन दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पे टेंजेंट A माइनस बी का और टेंजेंट A प्लस बी का, राइट। एंड वी नो टेंजेंट A माइनस बी इज इक्वल टू टेंजेंट A माइनस बी इज इक्वल टू टेंजेंट A माइनस टेंजेंट B अपॉन 1 प्लस टेंजेंट A इंटू टेंजेंट B। एंड सिमिलरली टेंजेंट A प्लस B का क्या होता है, दैट इज टेंजेंट A प्लस टेंजेंट B अपॉन 1 माइनस टेंजेंट A इंटू टेंजेंट B। तो इन दोनों टर्म्स पे हम सबसे पहले टेंजेंट A माइनस बी और टेंजेंट A प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। सो टेंजेंट A, नाउ टेंजेंट A माइनस बी, दैट इज A हमारे यहाँ पे 60 है, तो टेंजेंट 60 रूट 3, तो आई विल राइट रूट 3 माइनस टेंजेंट A अपॉन 1 प्लस रूट 3 इंटू टेंजेंट A, राइट। सिमिलरली इस पे अप्लाई कर देंगे टेंजेंट A प्लस बी का, तो टेंजेंट 60 प्लस टेंजेंट A, टेंजेंट 60 रूट 3, सो रूट 3 प्लस टेंजेंट A अपॉन 1 माइनस रूट 3 टेंजेंट A। नाउ इट्स वेरी सिंपल, अगर आप देखें न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपके पास फॉर्मूला बन गया है। किसका फॉर्मूला बन रहा है, A माइनस बी A प्लस बी। सिमिलरली नीचे भी किसका बन रहा है, A माइनस बी A प्लस बी। तो न्यूमिरेटर में आपके पास बन जाएगा सॉल्व करके 3 माइनस टेन स्क्वेयर A और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 3 टेन स्क्वेयर A। एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट 3 टेंजेंट A माइनस टेंजेंट क्यूब A अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वेयर A। एंड स्टूडेंट यू कैन सी कि किसका फॉर्मूला है, टेंजेंट 3A, दैट इज 3 टेंजेंट A माइनस टेंजेंट क्यूब A अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वेयर A। तो दिस होल इज इक्वल टू टेंजेंट 3A। तो इट्स वेरी सिंपल, आपको इसी के इक्वल प्रूव करना था, तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया टेंजेंट 3A। तो ऑल ओवर इस क्वेश्चन में सिर्फ आपने दो फॉर्मूले अप्लाई किए हैं, दैट इज टेंजेंट A माइनस बी एंड टेंजेंट A प्लस बी। अप्लाई करने के बाद अपने आप सिंप्लीफाई होकर सॉल्व होकर आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, राइट स्टूडेंट्स। चलिए इसी में आपके साथ एक पॉइंट और यहाँ पे नोट करना यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि अगर आपके पास सपोज क्वेश्चन ऐसे आ जाए, क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि प्रूव दैट कोट A इंटू कोट पाई बाई 3 माइनस A इंटू कोट पाई बाई 3 प्लस A इज इक्वल टू कोट 3। अगर आपके पास सपोज ये क्वेश्चन आ जाए कि आपको ये प्रूव करना है,
ये क्वेश्चन आपके साथ इसलिए डिस्कस करना चाहती हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑल ओवर आपको जो मैक्सिमम जो काम है आप कर चुके हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये इसी क्वेश्चन का ही लगभग पार्ट है। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको 10 में कन्वर्ट करना है, राइट। 10 में कैसे कन्वर्ट होगा, कोटे को आप लिख लेंगे 1/10 है, 1/10 पाई/3 माइनस है 1/10। तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा 1/, ये सारा 1/, ठीक है, राइट। उसके बाद जो आपका डिनोमिनेटर है वो अभी मैंने आपको बताया कैसे सॉल्व करना है, अभी हमने सारा सॉल्व किया, आपको क्लियर ही है। और सॉल्व करके वो आपका क्या आया है, टेंजेंट 3 है। तो नीचे वाला आपका पूरा सॉल्व करके आ जाएगा टेंजेंट 3 है, एंड 1/10 आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा कॉट 3 है। तो इट्स वेरी सिंपल। अगर आपके पास यही क्वेश्चन कॉट के टर्म्स में आता है तो आप सबसे पहले उसको सिंपल होगा, आप बजाय कि आप कोड के फॉर्मूले अप्लाई करें, कई बार फॉर्मूले हम भूल जाते हैं और 10 के जनरली हमें याद रहते हैं, तो क्यों ना पहले कोड को हम 10 के टर्म्स में पहले कन्वर्ट कर लें, दैट इज 1/10 टेंजेंट पाई/3 माइनस इनटू टेंजेंट पाई/3 प्लस ए। उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लें एज इट इज जैसे मैंने अभी बताया, और इसको सॉल्व करके हमारा आया था टेंजेंट 3a। तो ये आ जाएगा 1/10 3a और हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा कॉट 3a, राइट स्टूडेंट्स। चलिए नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So, our next question is, yes, we have to prove that sin A into sin 60 minus A into sin 60 plus A, and we have to prove this is equal to 1/4 sin 3A. Okay, let us see कि ये कैसे होगा। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ही लेकर चलेंगे, और अगर आप इन दोनों टर्म्स को देखें तो फिर सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी, एंड वी नो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, यस, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एंड सिमिलरली वी नो साइन ए, सॉरी क्योंकि हम माइनस का अप्लाई कर रहे हैं तो माइनस आएगा, और साइन ए प्लस बी का होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो फॉर्मूले तो अच्छे से लर्न कीजिए, फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से लर्न है तो क्वेश्चन आपके इजीली होते चले जाएंगे। तो इन दोनों टर्म्स में पहले हम साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो लेटेस्ट सी फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद क्या क्या टर्म्स हमारे पास बन जाएंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे, तो साइन ए, हाँ जी, साइन 60, ए हमारा 60 है, एंड साइन 60 इज √3/2, तो √3/2 कॉस ए माइनस कॉस 60, एंड कॉस 60 इज 1/2 साइन ए। सिमिलरली इस पे साइन ए प्लस बी का अप्लाई करेंगे, तो साइन 60 √3/2 कॉस ए प्लस 1/2 साइन ए प्लस 1/2 साइन ए। ओके, तो दोनों फॉर्मूले हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिए साइन ए प्लस बी का, डेट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एंड साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। दोनों फॉर्मूले हमने इन दोनों टर्म्स पे अप्लाई कर दीजिए, डेट इज साइन ए माइनस बी एंड साइन ए प्लस बी। तो स्टूडेंट्स अगेन आप देख सकते हैं ये आपके पास फिर से फॉर्मूला बन गया, जैसे कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हाँ कुछ इस तरीके का ही हमारा पैटर्न बन गया था, डेट इज ए माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इट विल बी साइन ए, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 3/4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1/4 साइन स्क्वायर ए, राइट। तो अभी तक हमने बहुत सिंपल काम किया है, सिर्फ हमने साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी के यहाँ पे जस्ट फॉर्मूले यहाँ पे हमने अप्लाई किए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ जो हमारा रिजल्ट है वो आना चाहिए 1/4 साइन 3a। साइन 3a मतलब 1/4 और ओवरऑल ये एक्सप्रेशन आना चाहिए। इस पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ साइन a है, तो हमारे पास अभी जो टर्म्स है उन टर्म्स में भी एक टर्म कॉस की भी है, तो हमें पहले इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वी विल राइट कॉस स्क्वायर a एज ए 1 माइनस साइन स्क्वायर a। सो आई विल राइट हियर कॉस स्क्वायर a को हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो साइन a 3/4 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर a माइनस 1/4 साइन स्क्वायर a। सो इट विल बी 3/4 माइनस 1/4, इट विल बी माइनस 4/4, दैट इज माइनस साइन स्क्वायर a। इस पूरे को सॉल्व जब हम करेंगे तो इट विल बी माइनस साइन स्क्वायर a। सो आई विल राइट हियर साइन a इंटू 3/4
माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो वी विल गेट 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए बाय 4, राइट। तो फ्रॉम हेयर साइन के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए बाय ए हमारे पास आ गया। एंड स्टूडेंट यू कैन सी जो न्यूमरेटर में हमारे पास आया है डेट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 3a। ये आपके पास बन गया है साइन 3a, तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया 1/4 साइन 3a। यही हमारी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड थी, डेट इज 1/4 साइन 3a, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पे साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बाद सिंपल इसको हमने मल्टीप्लाई किया है, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो पूरा साइन की टर्म्स में आना चाहिए। डेट्स वाई जो टर्म हमारे पास यहाँ कॉस की टर्म में थी, डेट इज कॉस स्क्वायर ए, उसे हमने साइन के टर्म में कन्वर्ट किया एंड देन मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है डेट इज 1/4 साइन 3 आ गया। ओके, सो लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव टू प्रूव, थोड़ा सा डिफरेंट है आपका ये जो अभी मैं क्वेश्चन आपको कराने जा रही हूँ। प्रूव दैट साइन 4x, हमें प्रूव करना है साइन 4x इज इक्वल टू 4 साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, 4 साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स माइनस 4 कॉस एक्स साइन क्यूब एक्स के इक्वल हमने इसको प्रूव करना है। चलिए देखते हैं। हाँ जी, तो साइन 4x से हम अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे, साइन 4x, एंड वी नो, हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता है कि जो साइन 2x है वो इक्वल होता है, ये हमारा फर्स्ट ही था, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। यहाँ 2x है तो उसका हाफ x हो गया, अगर साइन 4x है तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, 2 साइन 2x कॉस 2x। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, सो वी विल राइट साइन 4x को हम लिखेंगे 2 साइन 2x कॉस 2x। ओके, नाउ जितना भी हमारा रिक्वायर्ड जो राइट हैंड साइड है उसमें सब जगह एंगल x है, कहीं पे भी 2x नहीं है, तो हमें इन सब 2x को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साइन 2x का तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला अवेलेबल है, वो हमें आप पुट कर देंगे, दैट इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और cos 2x का यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसमें दोनों टर्म्स में बैलेंस्ड फॉर्म में है साइन और cos, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि एक ज़्यादा है और कोई दूसरी टर्म में कोई कम है या ज़्यादा है। इस वजह से हम इसका फर्स्ट फॉर्मूला ही यहाँ पे लेकर चलेंगे, दैट इज cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2x इन टर्म्स ऑफ cos एंड साइन। ठीक है, और आपके साथ ये डिस्कस मैं कर चुकी हूँ लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में कि cos 2x के हमारे पास 3 फॉर्मूलेज अवेलेबल हैं, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ आपको याद होंगे, एक तो cos 2x का मैंने बताया था कि ओनली दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ cos एंड साइन, देन इन टर्म्स ऑफ साइन ओनली, एंड देन इन टर्म्स ऑफ cos ओनली। तो जहाँ जैसे रिक्वायरमेंट होगी हम वहाँ पे इन फॉर्मूलोज को यूज़ करते हैं। नाउ जस्ट मल्टीप्लाई, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आपका रिजल्ट आ जाएगा cos square x minus sin square x, and after multiplication we will get 4 sin x cos cube x minus 4 sin cube x into cos x। so it is very simple, बहुत इजी था ये क्वेश्चन। सिर्फ हमने क्या किया, सबसे पहले sin 4x को लिखा 2 sin 2x cos 2x, then the formula of sin 2x 2 sin x cos x, और cos 2x से हमने cos और sin के टर्म्स में अप्लाई कर दिया, जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। राइट स्टूडेंट्स, तो आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे कैसे कैसे हम फॉर्मूलेज अप्लाई कर रहे हैं। नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव दैट cos 5x इज इक्वल टू 16 cos raised to power 5x minus 20 cos cube x माइनस 20 cos क्यूब एक्स प्लस 5 cos एक्स, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। यस स्टूडेंट्स, अब आप ये देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, cos 5x, बट cos 5x का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। cos 5x आज हमने बात करी, cos 3x की बात करी, cos 3a की बात करी, और लास्ट जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें हमने बात करी थी cos 2a की, राइट। बट cos 5x का हमारे पास कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, बट हमें जो भी रिजल्ट चाहिए वो सारा cos की टर्म में चाहिए। तो हम यहाँ पे काम करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन की स्टेप, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो सबसे पहले हम इसमें cos x ऐड करेंगे और cos x सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, बिकॉज cos 5x का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं है।
Now we will apply here formula of cos C plus cos D, and we know cos C plus cos D is equal to 2 cos C plus D by 2 into cos C minus D by 2. तो स्टूडेंट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे पिछले जो फॉर्मूलेज हैं वो यूज़ होते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आपको हर टॉपिक के हिसाब से मैं फॉर्मूलेज लिखवा रही हूँ, आप साथ साथ उनको लर्न करते जाएं, राइट. सो cos C प्लस cos D का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो 2 cos C प्लस D, so 5x plus x 6x by 2 3x into cos C minus D, so 5x minus x 4x and 4x by 2 2x minus cos x. okay, नाउ इट्स वेरी सिंपल. आपका जो ऑल ओवर पूरा रिजल्ट है वो किसकी टर्म में आना चाहिए? पूरा कॉस के टर्म में आना चाहिए. cos x टर्म यहाँ पे यूज़ हो रही है, तो हमारे पास cos 3x का भी फॉर्मूला अवेलेबल है, डेट इज़ 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos है, जो कि हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे. और cos 2x का भी हमारे पास सिर्फ cos की टर्म में फॉर्मूला अवेलेबल है, वो यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे, जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा. तो cos 3x के प्लेस पे लिख लीजिए 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, एंड cos 2x के प्लेस पे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos x. राइट स्टूडेंट्स, एंड नाउ स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल. इसको आप आगे खुद भी कंप्लीट कर सकते हैं, जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका ये रिजल्ट जो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी. तो उसे आप बड़ी इजीली अपना आप कंप्लीट कर सकते हैं, तो उसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा. ओके, नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले यहाँ पे एक दो फॉर्मूले हैं जो कि मैं आपको रिमाइंड कराऊंगी, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ. हाँ जी, याद कीजिए, आपको बताया था कि cos 2a के आपके पास cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos तो साइन की टर्म्स में फॉर्मूला, ओनली साइन की टर्म्स में फॉर्मूला, एंड ओनली cos की टर्म में फॉर्मूला, राइट. और इन दोनों फॉर्मूलों से ही फर्दर आपके पास दो और बनते हैं, डेट इज फ्रॉम हियर 1 प्लस cos 2a 1 माइनस cos 2a is equal to 2 sin square a, and from here 1 plus cos 2a is equal to 2 cos square a. राइट, इतना आपको पहले भी बताया था मैंने, क्योंकि आज अभी जो मैं आपको थोड़े से आपको जो छोटा सा जो भी आपको टॉपिक कराने वाली हूँ उसमें इसका यूज़ है. ठीक है, तो 1 माइनस cos 2a is equal to 2 sin square a, राइट. तो फ्रॉम हियर अगर हम फर्स्ट से देखें तो फर्स्ट से जो साइन a है उसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 1 माइनस cos 2a बाई 2, और सेकेंड से cos a की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 1 प्लस cos 2a बाई 2. राइट स्टूडेंट, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे फॉर्मूलेज आए साइन और cos a के. तो इन्हीं दोनों के ऊपर बेस्ड अभी मैं आपको, ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे कराने वाली हूँ. आपके पास कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि फाइंड वैल्यू ऑफ sin 22.5 डिग्री एंड cos 22.5 डिग्री. इसकी sin 22.5 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और cos 22.5 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. देखिए कैसे होगा, इन दोनों फॉर्मूलों का यूज़ कैसे होगा. यहाँ आपके पास जो एंगल है, हेयर एंगल इज a, और यहाँ पे है 2a, उसका डबल, राइट. हेयर a और यहाँ है उसका डबल. ये दोनों फॉर्मूले कैसे हैं ये आपको क्लियर हो चुके हैं. इन्हीं दोनों का यूज़ करके हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे sin 22.5 एंड cos 22.5 डिग्री की. देखिए कैसे. अगर यहाँ 22.5 डिग्री मैंने लिख दिया तो उसका डबल कितना हो जाएगा यहाँ पे 45, cos 45, एंड वी नो वैल्यू ऑफ cos 45, राइट. So that's why we will use these two formulas in order to find values of sin 22.5 degree and cos 22.5 degree, right. So find values of sin 22.5 degree and cos 22.5 degree. तो देखिए कैसे. तो सबसे पहले sin 22.5 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ना फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो sin 22.5 डिग्री. अब आप यहाँ भी देखते होंगे यहाँ प्लस माइनस है, और आपको बताया था किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव होना वो इस बात पे डिपेंड करता है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है. तो 22.5 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट्स व्हाई इट्स वैल्यू विल बी पॉजिटिव. तो 1 माइनस कॉस, यहाँ a है तो उसका डबल 2a है, यहाँ 22.5 है, दैट इज 45/2, तो उसका डबल हो जाएगा 45 डिग्री, दैट इज cos 45 डिग्री. तो 1 माइनस cos 45 डिग्री बाय 2, राइट स्टूडेंट्स. And we know cos 45 degree is equal to 1 by root 2, and finally we will solve, and it will be, so it is the value of sin 22.5 degree, that is
√2 माइनस 1/2 √2, इसको आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको आगे सॉल्व करें, आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे. सो इट इज द वैल्यू ऑफ sin 22.5 डिग्री. इट इज़ क्लियर. सिमिलरली वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ cos 22.5 डिग्री. तो cos 22.5 डिग्री में सिर्फ क्या चेंज आ जाएगा, वैल्यू उसकी भी पॉजिटिव ही रहेगी, बस यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, डेट इज 1 प्लस cos 45 डिग्री बाई 2, एंड वी नो cos 45 इज 1/√2, एंड सेम सॉल्व करके आपके पास जो वैल्यू आएगी पुट करने के बाद वो आएगी √2 प्लस 1/2 √2. तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी cos 22.5 डिग्री की, और ये वैल्यू है sin 22.5 डिग्री. तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, एक छोटी सी टर्म्स हैं जो आपके पास फाइंड आउट करनी आ सकती हैं. तो इन फॉर्मूलोज का यूज़ करके cos 45 की हेल्प से आप ये जो फ्रैक्शन में जो आपके पास एंगल है डेट इज़ द sin 22.5 एंड cos 22.5 की वैल्यू निकाल सकते हैं. यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो एंगल आपके पास गिवन है इसका जो डबल है डेट इज़ 45 डिग्री, उसकी वैल्यू हमें मालूम है, डेट्स वाई वी कैन फाइंड वैल्यूज ऑफ sin 22.5 एंड cos 22.5 डिग्री. ओके स्टूडेंट, इसी बिल्कुल सेम इसी मेथड से आपके पास वैल्यू फाइंड आउट करनी आ सकती है. sin 67.5 डिग्री की भी आ सकती है और cos 67.5 डिग्री की भी आ सकती है, राइट. तो सिर्फ डिफरेंस क्या आ जाएगा 67 और cos 67.5 में. 67.5 का डबल कितना हो जाएगा 135. 135 आपको 135 की भी आती है वैल्यू फाइंड आउट करनी. तो अगर आपको यहाँ पे sin 67.5 डिग्री की निकालनी है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 माइनस cos 135 डिग्री, जो कि 67.5 का जो डबल है वो कितना होता है cos 135 डिग्री. एंड सिमिलरली अगर आपको cos 67.5 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे आप लिखेंगे, क्योंकि 67.5 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करता है तो वैल्यू उसकी भी पॉजिटिव ही रहेगी. सो 1 प्लस cos 135 डिग्री बाय 2, राइट स्टूडेंट्स. एंड cos 135 डिग्री की वैल्यू आप सभी को फाइंड आउट करनी आती है, इट्स वेरी सिंपल. आप cos 135 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. cos 135 डिग्री दैट इज cos 180 डिग्री माइनस 45, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव, तो cos 135 की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस 1/√2. तो जस्ट पुट एट द प्लेस ऑफ cos 135 माइनस 1/√2, सॉल्व कर लीजिए, वेरी सिंपल. इसी तरह से आपके पास वैल्यू आ जाएगी sin 67.5 डिग्री की एंड cos 67.5 डिग्री की, राइट स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल 3 इन टर्म्स ऑफ ए. तो हमारे जो है आज 4 लेक्चर्स हो चुके हैं इस टॉपिक पे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स. अभी एक लेक्चर और बाकी है, एक छोटा सा टॉपिक और अभी हमारा रहता है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको टॉपिक आपका हो जाएगा. और ओवरऑल आपका जो ये टॉपिक है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. एंड देन वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक. सो स्टूडेंट्स, ट्राई ऑल द क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल 3 इन टर्म्स ऑफ ए. सो टिल नेक्स्ट lecture, stay safe, stay healthy. Thank you.